إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وأن كلا لما جميعا لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من يشاء الله طعما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون لا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يصرون وما يعلنون أولم ير الإنسان
بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد دیگر بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني يشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني يشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني يشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو معه
ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول؟ السلام يا أمين وحي. جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا،
إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال عدنا: وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة من نبي وآله. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآله. جزاك الله ما شاء الله. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على अब्र हजार साल बरसे तो क्या, गर अब्र हजार साल बरसे तो क्या, शबीर ने मरते दम न पाया पाने बस गई है अक़ीदत हुसैन की, रूहों में बस गई
अकीदत हुसैन की। सीनों में दिल है, दिल में है तुरबत हुसैन की। रूहों में बस गई है अकीदत हुसैन। फर्शे अज़ा है मेरे लिए गम की जानमा। अश्कों से कर रहा हूँ इबादत हुसैन की। रूहों में बस गई है अकीदत हुसैन की। दीने मोहम्मदी से निकल जाए वो अली जिसको नहीं कबूल क़यादत हुसैन की। रूहों में बस गई है अकीदत हुसैन। होता है इस सबब से मुहर्रम में इस तरह। अब तक यज़ीदियत पे है दहशत हुसैन की। रूहों में बस गई है अकीदत हुसैन की। हाथों में है हुसैन के जुल्फे नबी मर्जी पे चल रही है रिसालत हुसैन की। रोमाल जब भी खोलो तो ताजा लहू बहे। पूरे कर रहा है आज भी नुसरत हुसैन की। पानी का जाम सामने आता है जितनी बार करता हूँ उतनी बार ज़ियारत हुसैन की। रूहों में बस गई है अकीदत हुसैन की। असगर को रण में लाए ये कहते हुए हुसैन। नाना बस आखिरी है ये खिदमत हुसैन की। रूहों में बस गई है अकीदत हुसैन की। सीनों में दिल है, दिल में है तुरबत हुसैन की। रूहों में बस गई है। सूरह फातिहा।
सकीना शाम के जिंदान में थी अलम से निढा। सकीना शाम के जिंदान में थी अलम से निढा। कभी चचा का तस्वुर, कभी पदर का ख्याल, कभी रबाब से बातें, कभी भूबी से मकान, कभी खामोश, कभी आबिदे हज़ी से सवाल, कभी खामोश, कभी आबिदे हज़ी से सवाल। चचा कब आएंगे दरिया से लौट कर भैया, यहाँ से नहर का है किस कदर सफर भैया, यहाँ से नहर का है किस कदर सफर भैया। मैं करबला में रही मुंतज़िर नहीं आए, लाइन ले गए मेरे गोहर नहीं आए। जला दिए गए हम सबके घर नहीं आए। सदाएं देती रही मैं मगर नहीं आए। सदाएं देती रही मैं मगर नहीं आए। हवाएं सर्द तराई में जब मिली होंगी, थके हुए थे बहुत नींद आ गई होगी, थके हुए थे बहुत नींद आ गई होगी। तड़पती रहती थी मासूम यूं ही शाम सहर, तसल्लियां उसे देते थे आबिदे मुज़्फ़र। रबाब रोती थी बच्ची की बोली बातों पर, निगाह या से तकती थी ज़ैनबे पर, निगाह या से तकती थी ज़ैनबे पर। पयाम मर्ग बन दिल की बेकली आखिर, चचा के पास भतीजी चली गई आखिर, चचा के पास भतीजी चली गई आखिर। ये ज़ख्म ताज़ा जो अहले हराम के दिल पे लगा, तो कैद खाने में एक हश्र हो गया बर्पा। तड़प के जानबे आबिद रबाब ने देखा, बस इतना कह सकी है ये क्या हुआ बेटा, बस इतना कह सकी है ये क्या हुआ बेटा। संभल सका ना दिल पाश पाश बैठे
लगा के सीने से बच्ची की लाश बैठ गई, लगा के सीने से बच्ची की लाश बैठ गई। तड़प के बोले ये आबिद बहन खुदा मिलेंगे हश्र में ऐ खस्ता तन खुदा, मेरे गरीब मेरे कमसुखन खुदा, अला रसीदा गरीबुल वतन खुदा, अलम रसीदा गरीबुल वतन खुदा हाफिज। बग़ैर को गुस्लो कफन तक न दे सका भाई, तुझे तो इल्म है मजबूर था तेरा भाई, तुझे तो इल्म है मजबूर था तेरा भाई। सकीना शाम के मोहम्मद वाले और खुशबूदिए इमाम ज़माना बुलंद से बुलंद तर सलावत। सलाम से पहले मौला अब्बास जिस पे हो जाता है एक बार करम गाज़ी का, जिस पे हो जाता है एक बार करम गाज़ी का, मरते दम तक वो बशर भरता है दम गाज़ी का, और हाथ इंसानों के कटते हैं वफाओं के नहीं, हाथ इंसानों के कटते हैं वफाओं के नहीं। अभी जहरा कि ये कहता है अलम गाज़ी का, जिस पे हो जाता है बर मोहम्मद वाली मोहम्मद और खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंद से बुलंद तर सलावत। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, कैदी कहता है
कोई यतीमा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। मैं बयां कैसे करूं अपनी मुसीबत तुमसे, क्या करूं अपने तमाचों की शिकायत तुमसे। सुनती हूँ दादी ने खाया था तमाचा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। नील रुख सारों पे बीनाई भी जिसकी कम हो, उम्र हो 4 बरस और कमर में खम हो, आपने देखी है क्या ऐसी ज़ईफ़ा बाबा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। खून बेशीर से अंदाजा किया था मैंने, आपका चेहरा तो पहचान लिया था मैंने। आप पहचानोगे कैसे मेरा चेहरा बाबा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। फेंके दरबार में मैं सह ना सकी, आपके सामने जब शिमर ने मारा बाबा। वो तो बीमार थी मर जाती सफर में आके, दफन करते उसे बाजार में भैया कैसे। ये तो अच्छा हुआ ही नहीं सुगरा बाबा। बैन ये कहते ही खामोश हुई वो अकबर। आज तो जाएंगे साथ अपने
मुझे भी लेकर आपको मेरी कसम कीजिए वादा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। मोहम्मद और रोज कब्रे सकीना पे आओगी तुम, शाम की और तुम एक वादा करो। रोज कब्रे सकीना पे आओगी तुम, और जब तलक लौट कर मैं ना आऊं, आके शम्मा जलाओगी तुम, शाम की और तुम एक वादा करो। और हमने जिंदा से पाई रिहाई, अब बहन पास होगी न भाई, और बात इतनी सी बस याद रखना कि मेरी बच्ची है गम की सताई, और तुमने बाजार में भी सताया, अब न इसको सताओगी तुम, शाम की और तुम एक वादा करो। और जब कभी कैद खाने में आना, बेरिदा बीबियों को न लाना, तुमको असगर भी देगा दुआएं, इसकी तन्हाइयां यूं मिटाना। छोटे छोटे से बच्चों को लेकर पास इसके सुलाओगी तुम, शाम की और तुम एक वादा करो। और कब्रे बेकस पे आंसू बहाने
कह दे सितम का सुनाने, काफिला गए बला को चला है। अरे इसके बाबा कच्चे घिलुम मनाने, और इतना कह दो हमारी तरफ से, इसका चेघलुम मनाओगी तुम शाम की और तुम एक वादा करो, जब तलक लौट कर मैं ना आऊं, आके शम्मा जलाओगी तुम शाम की और तुम एक वादा करो। आगे बहुत जगह आ रही है। तमाम अरवाहे मोमिनात मुसलमात के लिए, तमाम शुहदाए इस्लाम के लिए, तमाम शुहदाए मिल्लत जाफरिया के लिए, तमाम शुहदा और अफीरान करबला के लिए, जो आप मुतल्लिक़ीन हैं उन सब के लिए, और ख़ास तौर पर बानी मजलिस के लिए एक सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, खातमिन नबिय्यीन, नबियना व शफीए ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सल्लल्लाहु अलैहि नाम से अल्लाह के जो बेहद मेहरबान मुसलसल रहम करने वाला है। कुरान शरीफ की बाद आयतें जो हैं मुख्तसर हैं, बहुत मुख्तसर हैं, मगर उसका मफ़हूम जो है वो बहुत वसी। असल में कुरान का मकसद है तालीम देना, और तालीम देने वाले के 2 काम होते हैं। जो तालीम देता है उसके 2 काम होते हैं। एक काम तो होता है बात को समझाना, जो भी बात बताना चाहता है, जो सब्जेक्ट पढ़ाना चाहता है वो उसको समझाना। तो वो क्या है, समझाने के लिए चाहिए डिटेल, तफसीला, आप तमाम इन्स एंड आउट्स के तमाम मालूम माल है, हर एंगल से
और ये किस लिए किया है? ताकि वो जो मैसेज मुफस्सल है उसको शॉर्ट कर दिया जाएगा तो वो इंसान के जहन में याद रहेगा। तो याद रखवाने के लिए शॉर्ट आयतें हैं जो पूरे कुरान का तकरीबन खुलासा है। ये हर तालीम का एक उसूल होता है। यहाँ भी हमने देखा होगा मॉडर्न कंट्रीज में जब प्रोफेसर लेक्चर देता है घंटा, सवा घंटा, पौना घंटा, तो बाद में एक समरी उसकी लिख कर वो जाता है, वो बांट देता है। वो जो उसने सवा घंटा तकरीर की है उसका वो खुलासा होता है। जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपको पूरा लेक्चर याद आता है। अगर आपने लेक्चर अटेंड किया है तो आपको पूरा लेक्चर याद आ जाएगा उस समरी को पढ़ेंगे, और वो समरी याद कर लेंगे तो कोई आपको पूरा लेक्चर याद हो गया। तो यही अंदाज इस आयत का है जो मैंने आपने पढ़ी है कि मुश्किल से 5-6 जल्दों में है। और सबसे बड़ी बात इसमें जो है वो ये है कि इंसान के पैदा होने का मकसद क्या है। ये सबसे मुश्किल फलसफा है, तो फलसफे का सबसे चोटी का मसला है। सारे फिलासफर ने इस पे लिखा है कि भाई क्यों पैदा किया इंसान, क्या मकसद है। भी है खुशी। उन्होंने किसी ने ये कहा, किसी ने कहा वेलफेयर मकसद है, किसी ने कहा ये मकसद है कि मैं अपने आप को दूसरों से तारुफ कराऊँ, अपना तारुफ कराऊँ। किसी ने कहा नहीं मकसद ये है कि मादरत खूब कमाओ, ये मकसद है। किसी ने कहा नहीं नाम बनाओ, ये मकसद है। किसी ने कहा नहीं हुकूमत करो, ये मकसद है। ये मुख्तलिफ फिलॉसफी है। तो लिखा सबने और फिर आर्गूमेंट दिए अपने तौर पर। आर्गूमेंट हम जो ये कह रहे हैं उनका दलील ये है, उसकी दलील ये है, ये वक्त नहीं है हमको बयान करने का। मगर मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ आपसे कि 100 सफ़हात लिखे ये बताने के लिए कि इंसान को क्यों पैदा किया गया, क्या मकसद है उसका, और फिर आखिर में लिखा किताब हमें इसका हक अदा नहीं करें। सब्जेक्ट इतना मुश्किल है ये, इसका हम हक अदा नहीं करें। इतने मुश्किल सब्जेक्ट को खुदावंद आलम ने कुरान मजीद के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक लफ्ज़ के अंदर बयान किया। वन सिंगल वर्ड, आयत नहीं, सेंटेंस नहीं, वर्ड। पूरी जो ये तख्लीक़ात हुई हैं जिनों की, इंसानों की, ज़मीनों की, आसमानों की, ये सब किस लिए? एक मकसद बताया। अच्छा, मकसद भी एक है और बताने वाला भी एक है और लफ्ज़ भी एक है। बताया मा खलक़तुल जिन्ना वल इंस, मैंने जिनों इंसानों को नहीं पैदा किया इल्ला, सिवा इसके, ले याबुदून, ले मुझे उर्दू बन गया लिए, मेरी गुलामी करने के लिए। अल्लाह फरमाया मेरी गुलामी करने के लिए, अपनी गुलामी करने। मैंने क्यों बनाया है? सिर्फ एक मकसद के लिए बनाया है, ये मेरी गुलामी है। अब गुलामी अब खत्म हो गई गुलामी, अच्छा हुआ खत्म हो गई। लेकिन अब उसकी जो मिसाल है वो है नौकरी। अब उसकी मिसाल नौकरी, थोड़ा फर्क है नौकरी तो गुलामी। नौकरी होती है पार्ट टाइम होती है, 8 घंटे की होगी, 10 घंटे की होगी, शायद 12 घंटे की होगी, फिर आप फ्री। गुलामी 24 घंटे की होगी। गुलाम जो होता है 24 घंटे होता है। दूसरा बात ये होता है कि नौकरी में तो आप काम कर दे, जो काम है आपका खत्म, नौकरी हो गई। गुलामी में आजिज़ी भी होगी, नौकरी काम भी करें और आजिज़ी के साथ करें। जैसे आप बाप की खिदमत करते हैं, जैसे अपनी माँ की खिदमत करते हैं आप, तो खिदमत भी
आपके जहन में ये बात आई। ऐसी पहली बात जो होती है हर काम की शुरुआत की, कोई काम की शुरू करते हैं आप, पहले नियत होती है। नियत नमाज की करते हैं आप, रोजे की करते हैं। मैं कहता हूँ जब हर चीज़ की नियत है तो जिंदगी की भी नियत होनी चाहिए कि जिंदगी किस लिए गुजार रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? वो एक ही है, ले याबुद, मैं सिर्फ अल्लाह की अल्लाह की ताकत, ये मतलब। और ये कैसे साबित होगा? ये साबित कैसे होगा कि मैं उसकी गुलामी कर रहा हूँ? कैसे साबित होगा? ये साबित होगा उसके अहकामात की तामील, जो उसने अहकामात दिए हैं या जो फ़राइज़ उसने हम पर मुकर्रर किए हैं, उन फ़राइज़ को पूरा करने। आप मसलन नौकर रखते हैं, कुक रखते हैं, कैसे साबित होगा कि ये कुक सही से अच्छा कुक है? कैसे साबित होगा? पकाता कैसा है? उससे ज़्यादा होगा आपको कोई काम सही करता है। आपने कोई ड्राइवर रखा है, कैसे साबित होगा कोई अच्छा ड्राइवर है? ड्राइविंग जैसी ड्राइविंग करे उससे अंदाजा हो। तो काम जो होता है बताता है, नौकर का काम बताता है कि वो नौकरी कर रहा है सही कि नहीं कर रहा है। वैसे गुलाम का भी यही है कि अगर मैं अपनी चाहता हूँ गुलामी साबित करना, मैं मुझे दुनिया में फिर इसलिए बनाया गया है कि मैं अपनी गुलामी साबित करूँ अल्लाह से कि मैं उसका गुलाम हूँ। ये सबसे बड़ा इसका सबूत क्या होगा कि जो फ़राइज़ उसने मुझ पर आयत किए हैं, ड्यूटीज़ जो उसने मुझ पर आयत किए हैं, उनको पूरा करो। इकथाल एक बहुत बड़ा मुस्तशरिक़ है जिसने तर्जुमा किया कुरान शरीफ का। इकथाल बहुत उसका तर्जुमा माना जाता है, इतना तर्जुमा है। उसने तक़वा का तर्जुमा किया है टू बी ड्यूटीफुल टू गॉड, टू बी ड्यूटीफुल टू गॉड। यही है कि गुलाम का काम क्या है? टू बी ड्यूटीफुल। जो ड्यूटी उसको दी गई है वो ड्यूटी पूरी करे। अब आप इसमें काम करते हैं, वो नौकरी है ना, जो भी काम आपको दिया गया है बस वो आप काम करें। अगर वो आप काम सही करते हैं, पूरा करते हैं, आप ड्यूटीफुल, आपने अपना अदा कर दिया। ऐसे अल्लाह की गुलामी साबित कैसे होगी? जो अल्लाह ने मुझ पर फ़राइज़ आयत किए हैं, उन फ़राइज़ को मैं अदा जितना करता जाऊंगा उतनी ही मेरी गुलामी अल्लाह की निगाह में साबित होगी। थोड़ा आगे आगे हो जाए, आ जाए तो और वो ज़्यादा नहीं तो असल जो दुनिया में मेरा मेन काम है वो ये है जिसके लिए मुझे पैदा किया गया, जिस पर मेरी के लिए दी है कि हम अपनी गुलामी को साबित करें। इसलिए फरमाया है जनाब इमाम अली हुसैन ज़ैनुल सल्लल्लाहु कि इन्नल्लाह बिमन्निही व बिइहसानिही फरज़ अलैकुमुल फ़राइज़। ये अल्लाह की तुम पर मिन्नत है, ये तुम पर अल्लाह का एहसान है कि उसने फ़राइज़ तुम पर आयत किए हैं। जरूरत नहीं उसको, जरूरत नहीं। मेरी नमाज से कोई फ़ायदा नहीं होता अल्लाह को। अगर मैं ये समझ के नमाज पढ़ता हूँ माज़अल्लाह के अल्लाह को फ़ायदा बचा रहा हूँ, इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं कर रहा हूँ, इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं कर रहा हूँ। मेरे रोज़े से अल्लाह को कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरी जितने मैं अमाल करता हूँ, बीवी बच्चों की खिदमत करता हूँ, माँ बाप की खिदमत करता हूँ, नौकरी करता हूँ, कमाता हूँ, हलाल रोज़ी कमाता, इससे कुछ अल्लाह को फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा मुझे हो कि मैं अपनी गुलामी को साबित कर रहा हूँ। अगर अल्लाह ने फ़राज़ आयत न किए होते
तो मुमकिन नहीं था कि मैं उसे अपनी गुलामी साबित करता। कैसा दावा करता था सर? दावे से कोई दावा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। कोई दावा करे दावा तो सही होता है, गलत भी होता है, लेकिन अमल साबित करता है ये बात सही है गलत है। अगर अल्लाह ने फराइज आयद न किए होते तो मैं गुलामी साबित कर सकता ही नहीं था। ये अल्लाह का एहसान है मुझ पर, तो उसने फराइज आयद करने के बाद मुझे ये मौका अता फरमा दिया कि मैं अपनी गुलामी को साबित कर सकूँ। जितना मैं फराइज को अदा करूँगा नियमतें अल्लाह ने मुझे दी, अल्लाह ने नमाज पढ़ता सजा अगर वाजिब है, फर्ज सजा बहुत अगर ज़्यादा टाइम लगाए, बहुत ज़्यादा इसको वो करें तो वजू का टाइम लगे तो बहुत ज़्यादा होगा तो पौना घंटा 45 मिनट 40 मिनट का काम होगा। 24 घंटे आपको दिए अल्लाह ने, 24 घंटे में से आपसे 40 मिनट दिए, बहुत वजू काम है। आप भी बताइए, फिर उसका आदर मिलेगा, आपकी गुलामी साबित होगी, आपका अल्लाह से ताल्लुक पैदा हो जाएगा। और ताल्लुक भी कैसा ताल्लुक पैदा हो जाएगा कि आप अल्लाह से ये कह सकेंगे कि इय्याका नाबुदु, मैं फकत तेरी गुलामी करता हूँ, इय्याका नस्तईन, नमाज ने कितना आपको करीब कर दिया ना। देखिए कोई दोस्त होता है, ताल्लुकात पैदा होते हैं, बातचीत होती है, तारुफ होता है, साथ उठते बैठते हैं, फिर काफ़ी अरसे के बाद ये होता है कि मैं उससे ये कहूँ भाई ये मेरा ये काम कर दें, जरा मुझे ज़रूरत है इस काम की आप। कितने ताल्लुकात जब होने के बाद कहीं आगे इंसान के दोस्ती में ये बात पैदा होती है, ताल्लुकात में ये बात पैदा होती है कि मैं आपसे कोई काम आपसे कह सकूँ, मेरा ये काम कर दें। यहाँ देखिए मैंने एक लफ्ज़ कहा इय्याका नाबुदु, मैं फ़कत तेरी गुलामी करता हूँ, उसने मान लिया, उसने मान लिया कि तो मैं तेरी गुलामी कबूल करता हूँ। जब ही तो मैंने कहा इय्याका नस्तईन, फिर तुझसे मदद मांगता हूँ। कितना गहरा ताल्लुक काम हो गया। लेकिन एक लफ्ज़ कहकर दो लफ्ज़ कहकर इय्याका नाबुदु कहकर ताल्लुक कितना गहरा साबित हो गया कि अल्लाह की तमाम इमदाद मेरे हाथ से मुझे हासिल हो गई कि मैं उससे कह सकता हूँ कि मेरी मदद फरमा, मैं तुझसे मदद मांगता हूँ। ताल्लुकात कितने गहरे हो गए, देखिए कितने गहरे ताल्लुक। ये नमाज, और देखिए हुजूर के सबसे बड़ी फजीलत जो है वो है मेराज, सब मानते हैं सबसे बड़ी मेराज, सबसे बड़ी फजीलत जो हुजूर की है मेराज। मेराज में क्या हुआ था? मेराज में क्या हुआ भाई? अल्लाह का मैसेज तो हबत अल्लाह हुजूर को मिलता रहता था, जो कुरान में ही है कि माँ यंतिकु अनिल हवा। कुरान कह रहा है कि ये अपनी ख्वाहिश से बोलते तक नहीं है। माँ यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, ये बस वही बोलते हैं जो इन पर वही किया जाता है। तो कितना 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 गहरा ताल्लुक होगा अल्लाह से, बोलते ही नहीं है, मतलब हर वक्त ताल्लुक अल्लाह से है ना, वो कुछ भी नहीं बोलते जब तक वही नहीं आते। कुरान की याद है ताल्लुक कितना गहरा होगा। फिर जिब्रील आते थे वही लेकर कुरान लेकर, ये ताल्लुक अल्लाह से था, बातें करते थे अल्लाह से, वही होती थी। मगर फर्क क्या था? फर्क ये था कि अब तक जो अल्लाह से कनेक्शन था हुजूर का वो इनडायरेक्ट था, डायरेक्ट नहीं। भाई जिब्रील आए पैगाम लेकर आए, फरिश्ता लेकर आया पैगाम लेकर आया, आवाज आ गई, इनडायरेक्ट। अब मेराज में क्या हुआ? मेराज में ये हुआ कि अब हुजूर जो थे वो अर्श इलाही पर पहुंचे, उस जगह पहुंचे जो मरकज है अल्लाह की तजल्लियात। और वहां क्या हुआ कि औहा इला अब्दिही मा औहा, कुरान कहता है फिर अल्लाह ने बातें की अपने बंदे से जो चाहा वो बातें की। अब जो बात हुई वो डायरेक्ट हुई, अब जो बात हुई डायरेक्ट, क्योंकि सबसे बड़ा वसीला थे वो जिब्रील थे। सब ने लिखा शिया सुन्नी ने, एक मकाम है ऊंचाई का सिदरतुल मुंतहा, जहाँ ये आलम जो है ख़त्म हो जाता है। ये अल्लाह ये तकलीफ जो आलम है, ये आलम चाहे वो आलम रूहानी हो चाहे वो आलम मादी हो, ख़त्म हो जाता है, उसे कहते हैं सिदरतुल मुंतहा। जब वहाँ पहुँचे तो जिब्रील ने कहा बस या रसूलल्लाह अब इसके आगे आज तक कोई जा सका नहीं, न कोई मलक के मुकर्रब जा सका है, न कोई नबी मुरसल जा सका।
यहाँ से अगर मैं एक कदम आगे बढ़ूंगा तो वो तजल्लियात हैं अल्लाह की, वहाँ पर वो तजल्लियात हैं कि मेरे सारा वजूद जल के राख हो जाए। बर्दाश्त नहीं कर सकता, सिर्फ एक आप हैं कि आप जा सकते हैं इससे हम। और हुजूर गए और वहाँ तजल्लियात पर पहुँचे और वहाँ जाकर अल्लाह बातें की अल्लाह से। देखा आपने? अब एक बहुत बड़ा सूफी वो हैं, सूफी मुफस्सिर, बल्कि सूफी शेख अकबर कहते हैं, मोहिउद्दीन अरबी, ये बहुत बड़े मुफस्सिर हैं और सूफियों के सबसे बड़े बहुत, उन्हें कहा जाता है शेख अकबर, सबसे बड़े शेख, उनकी तस्वीर भी है। तो उन्होंने बड़ा अजीब पॉइंट लिखा है, नया पॉइंट लिखा उन्होंने कहा कि मुझे तो ताज्जुब इस बात पे होता है कि हुजूर वहाँ पहुँच गए जहाँ मरकज़ तजल्लियात है, सबसे ऊंचा मकाम, यहाँ कोई नहीं जा सकता, और फिर वहाँ से वापस आ गए ज़मीन पर। इतना ऊंचा जाने के बाद और फिर वापस गया ज़मीन, दुनिया के मानिए नीचा, सबसे पस्त जगह, दुनिया के मानिए पस्त से पस्त जगह, इतना ऊंचा जाने के बाद पस्त से पस्त जगह वापस आ गए। वो लिखता है अगर मैं जाता वहाँ, मैं अगर पहुँच जाता वहाँ तो वापस नहीं आता, अगर अब नहीं जाऊँगा, खत्म, अब यहाँ से कौन वापस जाएंगे, नहीं आऊँगा। अब ये देखा अब ये ताजुब होता है, मगर असल बात यही, बस यही फर्क है। कोई भी, मैं कहता हूँ मोहिउद्दीन अरबी नहीं, कोई भी वहाँ पहुँच जाएगा फिर वहाँ वापस आना गौरा करेगा, इतना अल्लाह के करीब पहुँच गया जो, फिर क्यों आएगा वहाँ वापस जाना, जैसे सही मेरा जब वहाँ से कौन अल्लाह का कोर्ट के बाद कहीं कौन क्यों वापस आया। तो मैं कहता हूँ कोई भी आदमी होता वो वहाँ पहुँच जाता वापस नहीं आता। ये फ़र्क है मोहम्मद मुस्तफ़ा में और तमाम इंसानों में। मोहम्मद वाले मोहम्मद जो वहाँ जाता वापस नहीं आता, मगर हुजूर आए, क्यों आए, इसलिए आए। उन्होंने ये सोचा कि जब मुझे अल्लाह ने ये मकाम अता फरमाया है कि मैं अल्लाह से दू बात कर सकता हूँ, तो मैं भी अपनी उम्मत के लिए नमाज लेके जाऊंगा ताकि वो भी अल्लाह से दू बात कर सके। ये इंसान की अजमत है बहुत बड़ी कि इंसान, आम आदमी क्या चाहता है कि कोई चीज मुझे मिल गई है तो दूसरे को न मिले। हम ये चाहता है ना मुझे चीज मिल गई अब दूसरे को न मिलेगी, बात मुझसे नीचे रहे। देखिए ये अजमत होती है इंसान की। कोई कहता है जो मुझे मिली है दूसरे को भी मिले, तो दूसरे को दूंगा। ये असल, ये इंसान का हक, ये इंसानी हुकूक, ये अल्लाह का हक नमाज। इंसान का हक ये है कि जो अल्लाह ने आपको नेमत दी है उसमें से दूसरों को भी दी। ये हुजूर ने लेकर दिखाया कि नहीं, मैं ऐसा तरीका लेकर आऊँगा ज़मीन पर अपनी उम्मत के लिए कि जैसे मैं खड़े होकर दू बदू अल्लाह से बात करके आया हूँ मेराज पर, वैसे ही हर मेरा मानने वाला नमाज में खड़े होकर दू बदू अल्लाह से बात करेगा। या का ना बोलूँ, हाँ मैं तेरी, ये नहीं उसकी, तेरी। अब तेरी किसे कब कहता है आदमी, तेरी किसी के सामने होता है ना, या का ना बोलूँ, मैं फकत तेरी गुलामी करता हूँ और रात का से बात कर रहा हूँ, और फिर कह रहा हूँ या का नस्तईन, तुझसे मदद मांग। ये है देखिए मोमिन की ताकत। मोमिन की ताकत क्या होती है, अल्लाह की मदद। अल्लाह की मदद, अल्लाह की मदद का मतलब फकत यही है मतलब पैसा हो गया आपका बहुत ज़्यादा, अगर आपको अल्लाह की मदद तो पैसा होना चाहिए। पैसा क्या चीज़ है अल्लाह के, अल्लाह की मदद का मतलब सबसे बड़ा ये है, पहला मतलब उसका ये है कि अल्लाह की इताअत की तौफीक। जितना अल्लाह ने आपको अपनी इताअत की तौफीक दी है उतनी अल्लाह ने आपसे मदद की है, क्योंकि उससे आप अपनी गुलामी को साबित कर रहे हैं, उससे आप अल्लाह के करीब हो रहे हैं और सबसे बड़ी कामयाबी हासिल कर रहे हैं। अबदी कामयाबी अल्लाह की इताअत की तौफीक। सबसे बड़ी नेमत जो है अल्लाह की वो ये है कि अल्लाह आपको तौफीक इताअत दे कि आपका दिल चाहे अल्लाह की इताअत करे, आप राजी हो जाए, खुशी से। शुरू में तो मजबूरी नहीं करता है वो, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका ताल्लुक अल्लाह से डेवलप होता है, फिर अल्लाह से मोहब्बत कायम होती है उसे। जब मोहब्बत का ताल्लुक कायम होता है तो मोहब्बत का ताल्लुक का एक खासा ये होता है कि जिससे भी आपको मोहब्बत होती है उससे मिलकर आपको खुशी होती है। क्या कह रहे हैं, ये खासा है मोहब्बत।
आपको अपनी औलाद से मोहब्बत है, औलाद सामने आएगी तो आपका दिल ठंडा हो जाएगा। खुशी हो जाएगी, उसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, आपको खुशी, क्योंकि आपको मोहब्बत है। जब मोहब्बत होगी, जितनी मोहब्बत होगी, मुलाकात का शौक होगा। क्या कहने जो शायर देखा, हम हैं प्यासे शरबते दीदार के, हम हैं प्यासे शरबते दीदार के। जिससे मोहब्बत है उसे देखा जाता है। अगर अल्लाह से मोहब्बत का ताल्लुक कायम हो जाएगा तो अल्लाह से मुलाकात का शौक पैदा हो जाएगा। शौक, ये शौक देखिए होता है कि आप गौर कीजिए कितनी मुश्किलात में हमारे इमाम ने गुजारा, करबला की बात के बाद आपके सामने है, मगर अहले बैत के किसी फर्द ने कोई नमाज अदा नहीं की, क्या न बच्चों ने न पढ़ो, चाहे रास्ते में हूँ, चाहे भूखे हूँ, चाहे प्यासे हूँ, पानी नहीं मिला है, चेहरा पे तैमूर करके मार, ये देखो फराइज़ को अदा करो, ये अल्लाह से मोहब्बत है, ये अल्लाह से ताल्लुक़, ये अल्लाह की इताअत का जज्बा देखिए। और ये बात बोल के ख़त्म करता हूँ, बड़ी अजीब रिवायत है, और ये उन रिवायतों में से है कि जनाब इमाम अबूज़र ने खुद बयान, कुछ रिवायतें हमको मिली हैं डायरेक्ट इमाम ज़हरा में। देखिए शौक़ देखिए और मोहब्बत देखिए और इताअत का जज्बा देखिए कि फरमाते हैं मेरे चौथे इमाम कि हम कैद खाने शाम में थे। मैंने कह दिया, रात में सुन लिया, क्या हाल होगा कैद खाने शाम, अंधेरा रात का वक्त। बातें मैं नमाज तहज्जुद पढ़ा, ये फर्ज नमाज नहीं है, सुन्नत नमाज है। बातें मैं नमाज तहज्जुद पढ़ा था, नमाज आखिरी रात कैद खाने के अंदर। फरमाते हैं मैंने देखा कि मेरे सामने आगे जनाब ज़ैनब है या साइड में ज़ैनब है, वो भी नमाज शब पढ़ रही है मगर बैठ कर पढ़, बैठ कर पढ़। ये इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा खड़ी होकर पढ़ती थी, आज बैठ के पढ़ रही। कहते हैं मुझसे बर्दाश्त नहीं, माँ फरमाते हैं मुझसे बर्दाश्त नहीं कि मेरी फूफी आज बैठ कर नमाज पढ़ रही, क्या वजह है? तो फरमाते हैं कि मैंने अपनी हथकड़ियाँ संभाली, अपनी बेड़ियाँ संभाली, आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी फूफी के करीब पहुँच गया और मुसल्ले के करीब बैठ गया। मैं बैठ गया मुसल्ले पे, नमाज पढ़ रही। जब नमाज से फारिग हुई, जब तवज्जो हुई, 1 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे मसाइल। जब नमाज से फारिग हुई तो मैंने सलाम किया, ये जवाब दिया, नहीं फूफी जान क्या बात है, आप तो हमेशा खड़े होकर नमाज पढ़ती थी नमाज में, आज क्या वजह है कि आप बैठ के पढ़ रही हैं? तबीयत खराब है, आपको तकलीफ है, कोई शिकायत है? आप मुझे कोई शिकायत नहीं, फिर आप बैठ के क्यों नमाज पढ़ रहे हैं? बेटा मत पूछो, बेटा ये बात मत छोड़ दो, मैं जाऊँगा नहीं जब तक आप मुझे ये बताएंगी नहीं कि मैं आप क्यों बैठ कर नमाज पढ़ रही हैं, मैं जाऊँगा नहीं यहाँ से। इमाम ने शदीद इसरार किया, बेटा मजबूर कर रहे हो तो सुन। मसला ये है कि जो आब दाना, जो खाना पानी हम कैदियों के लिए आता है, मैं सब में बांट देती हूँ, बच्चों में बांट देती हूँ, बीवियों में बांट देती हूँ, मतलब इतना कम होता है, इतना कम होता है कि बहुत कम हिस्सा मिलता है। थोड़ी देर के बाद बच्चे जो है तड़पने लगते हैं, या पानी मांगने लगते हैं या रोटी मांगने लगते हैं, या भूखे हो जाते हैं या प्यासे हो जाते हैं, भूख लगते हैं। बेटा मुझसे उनका तड़पना बर्दाश्त नहीं होता, उनका बिलखना और तड़पना भूख के आलम में और प्यास के आलम में जब मुझसे रोटी या पानी मांगते हैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बेटा मैं ये करती हूँ, अपने हिस्से का खाना नहीं खाती, अपने हिस्से का पानी नहीं पीती, छुपा के नहीं देती हूँ। जो बच्चा बहुत तड़पता है तो उसको कपड़ा खड़ा दे देती हूँ, उसको अपना, इसलिए अब इतनी कमजोर हो गई हूँ खड़े हो गए।
मातम हुसैन हरदम गमे हुसैन में आंसू बहाएंगे हरदम गमे हुसैन में आंसू बहाएंगे हरदम गमे हुसैन में आंसू बहाएंगे ज़हरा से जो किया है ज़हरा से जो किया है वो वादा निभाएंगे हरदम गमे हुसैन में आंसू बहाएंगे हरदम गमे हुसैन में आंसू बहाएंगे लूटा गया बतूल का घर क्यों ना रोए हम जख्मी हुआ नबी का जिगर क्यों न रोए हम आंखों से अपनी अश्क नहीं खून बहाएंगे हरदम गमे हुसैन में आंसू बहाएंगे हरदम गमे हुसैन में आंसू बहाएंगे हम इसी तरह हुसैन की मजलिस में आएंगे हरदम गमे हुसैन में आंसू बहाएंगे हरदम गमे हुसैन में आंसू बहाएंगे जो भी हो करबला से कभी मुंह न मोड़ेंगे फर्शे आज़ा से है वफा हम न तोड़ेंगे अब्बास नामदार का परचम उठाएंगे हरदम गमे हुसैन में आंसू बहाएंगे हरदम गमे हुसैन में आंसू बहाएंगे सदा से लई कर धराएंगे हरदम गमे हुसैन में आंसू बहाएंगे हरदम गमे हुसैन में आंसू बहाएंगे ज़हरा की सब दुआएं जहाँ है वहाँ है हम ज़ैनब के इंतज़ाम में अज़ाब का निशा है हम जो खुद है बेनिशा वो हमें क्या मिटाएंगे हरदम गमे हुसैन में आंसू बहाएंगे हरदम गमे हुसैन में आंसू बहाएंगे फिक्रो दिलो नज़र में मुसद्दिक़ है करबला दुनिया में उसके नूर से फैल लाएंगे ज़िया अकबर ना बन सकेगा मगर हुए बनाएंगे हरदम गमे हुसैन में आंसू बहाएंगे
हरदम गमे हुसैन में आंसू बहाएंगे। ज़हरा से जो किया है, ज़हरा से जो किया है वो वादा निभाएंगे। हरदम गमे हुसैन में आंसू बहाएंगे। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु
तमाचे मासूमा गा रही है रुखसारों पे 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 तमाचे पे तमाचे मासूमा गा रही है रुखसारों 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 पे तमाचे मासूमा गा रही है बाबा को जेर भेजे बाबा को जेर भेजे बेटी बचा रही है रुखसारों पे तमाचे मासूमा गा रही है रुखसारों पे तमाचे मासूमा गा रही है रुखसारों पे तमाचे मासूमा गा रही है बाबा को जेर भेजे बाबा को जेर भेजे बेटी बचा रही है रुखसारों पे तमाचे मासूमा गा रही है रुखसारों पे तमाचे मासूमा गा रही है रुखसारों पे तमाचे मासूमा गा रही है बाबा को जेर भेजे बाबा को जेर भेजे बेटी बचा रही है रुखसारों पे तमाचे मासूमा गा रही है रुखसारों पे तमाचे मासूमा गा रही है रुखसारों पे तमाचे मासूमा गा रही है आगोश में पिछड़ के करने से हाथ बांधे
तमाचे मासूमा खा रही है रुखसारों के तमाचे मासूमा खा रही है आगोश में बितर के नन्हे से हाथ बांधे आगोश में बितर के नन्हे से हाथ बांधे जालिम तमार घर में घरे में जा रही है रुखसारों के तमाचे मासूमा खा रही है तमाचे मासूमा खा रही है रुखसारों के तमाचे मासूमा खा रही है बाबा को तेरे खंजर बाबा को तेरे खंजर बेटी बचा रही है रुखसारों पे तमाचे मासूमा खा रही है के तमाचे मासूमा खा रही है रुखसारों के तमाचे मासूमा खा रही है क्यों मारते हैं बाबा आपने खता की क्यों मारते हैं बाबा क्या आपने खता की आओ छुपा लूं उनसे बाहें फैला रही है रुखसारों के तमाचे मासूमा खा रही है रुखसारों के तमाचे मासूमा खा रही है रुखसारों के तमाचे मासूमा खा रही है क्यों मारते हैं बाबा आपने खता की क्यों मारते हैं बाबा क्या आपने खता की आओ छुपा लो उनसे बाहें फैला रही है रुखसारों के तमाचे मासूमा खा रही है रुखसारों के तमाचे मासूमा खा रही है रुखसारों के तमाचे मासूमा खा रही है बाबा को तेरे खंजर बाबा को तेरे खंजर बेटी बचा रही है रुखसारों के तमाचे मासूमा खा रही है रुखसारों के तमाचे मासूमा खा रही है रुखसारों के तमाचे मासूमा खा रही है जाके गले पे खंजर जब शिमले ने सजाया जाके गले पे खंजर जब शिमले ने जलाया बाबा को मकतल से छोरो बुला रही है रुखसारों के तमाचे मासूमा खा रही है रुखसारों के तमाचे मासूमा खा रही है रुखसारों के तमाचे मासूमा खा रही है जाके गले पे खंजर जब शिमले ने जलाया जाके गले पे खंजर जब शिमले ने जलाया
रुखसारों के तमाचे मासूम कर रही है रुखसारों के तमाचे मासूम कर रही है रुखसारों के तमाचे मासूम कर रही है मिला जाए अकबर से हट कर दयाज बहना फिर ला जाए अकबर से निपट कर दयाज बहना आई को बिना तेरा जख्मी दिखा रही है रुखसारों के तमाचे मासूम खा रही है रुखसारों के तमाचे मासूम खा रही है रुखसारों के तमाचे मासूम खा रही है फिर ला जाए अकबर से निपट कर दयाज बहना फिर ला जाए अकबर से निपट कर दयाज बहना रुखसारों के तमाचे मासूम खा रही है आगोश में बिखर के नन्हे से हाथ बांधे आगोश में बिखर के नन्हे से हाथ बांधे जालिम हमारे सर में शरीर पे जा रही है रुखसारों के तमाचे मासूम खा रही है रुखसारों के तमाचे मासूम खा रही है रुखसारों के तमाचे मासूम खा रही है आगोश में बिखर के नन्हे से हाथ बांधे आगोश में बिखर के नन्हे से हाथ बांधे जालिम हमारे घर में के जा रही है रुखसारों के तमाचे मासूम
बोले आबिद कोई तो दे देगा फैज़
वो जाने वाली मर गई कैद में वो जाने वाली मर गई बोले आबिद कोई तो दे दे कफन बोले आबिद कोई तो दे दे कफन
अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका वाला जद्दिका वाबी, अस्सलामु अलैका वाला उम्मिका वाखी, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम जुमला शुहदाए करबला वसीराने कूफा व शाम, बिलखुसूस सानी ज़हरा बीबी ज़ैनब सलवातुल्लाह अलैहा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला या गरीब अल-गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन अद-दुअफा वल फुकरा, अस्सलामु अलैका या शम्स अश-शमूस, अस्सलामु अलैका या अनीस अन-नफूस, अस्सलामु अलैका या अय्युहल मदफून बिअर्ज़ तूस, सुल्तान अरब वल अजम अली इब्न मूसी रज़ा बिल क़द्र वल क़दा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिबल अस्र वल ज़मान, अलमान 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 मिन फितनतिज़ ज़मान। अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका या इमाम अल इंस वज्जान, सय्यदी वज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक, ज़ुहूरक वजअलना मिन आवानिक व अंसारिक व मुहिब्बिक जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।